Thank you so much for the beautiful music. और इस अच्छी मौसीकी के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। It was very touchable to our heart. और ये जो आपने अभी गीत बजाया है दिल को छू गया। This morning I came down closer to you. और आज आपके और करीब आ गए हैं। That's better than before. और पहले से अच्छा बेहतर लग रहा है। I can see your face one by one. और अभी आपके जो चेहरे हैं वाज़े तौर पर देख सकते हैं। Please don't be asleep. और इसलिए सोने की जरूरत नहीं। I can see you. आपको देख सकते हैं। Okay. The topic of this morning is, can I live again even death? और आज का जो हमारा उन्वान है वो है, क्या मैं मरने के बाद भी जिंदा रह सकता हूँ। I'd like to introduce some Bible verses relating to the resurrection. और जी उठने के मुतालिक कलाम में जो हवाले पाए जाते हैं उनमें से चंद आयात आज आपके सामने पेश करेंगे। 1 Corinthians chapter 15, 13 to 19. पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 13 से 19 आयत। I'm going to read some part of this verse. और इन आयात में से चंद जो अल्फाज हैं वो पढ़ेंगे। But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। And if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith also is vain. और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। And verse 17. और 17वीं आयत। And if Christ has not been raised, your faith is worthless. और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। You are still in your sins. अब तक हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं। Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. और बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। Let's see one more verse. आइए एक और आयत देखेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53. और पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 51 से 53 आयत तक। Behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. और ये एक ही दम एक ही पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable. क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। And we will be changed. और हम बदल जाएंगे। Okay, these two verses is explaining about the resurrection of the dead. और ये जो दो आयत अभी हमने पढ़ी हैं, ये जो मुर्दे हैं उनके जी उठने के मुतालिक बात करती हैं। The doctrine of resurrection is a very, very important teaching in the Christianity. और जो मसीहत है इसमें जी उठने का अकीदा बहुत ही अहम और जरूरी है। In common sense of human, it is impossible for the dead to be alive. इंसानी सोच के मुताबिक मुर्दे का जी उठना नामुमकिन है। But in the God's side, it is nothing to revive the dead's life again, because God is the creator who created man's life. लेकिन खुदा की नज़र में ये मुमकिन है क्योंकि खुदा ही है जिसने इंसान को तख्लीक किया। When Jesus was walking in this earth, he did revive several dead's life. जब मसीह यीशु इस दुनिया में था, जब उसने जिंदगी बसर की तो उसने कई मुर्दों को जिंदा किया। And he told, और उसने कहा, I am the resurrection and the life. और उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। He who believes in me will live, जो मुझ पर ईमान रखेगा जिंदा रहेगा, even though he dies. चाहे वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। So there are two great doctrines in the Bible. और कलाम में दो बड़े मशहूर और अजीम अकायद हैं। The one is God's creation and the Sabbath. और पहला खुदावंद की तख्लीक और सबत। And the other is Jesus' advent and the resurrection. और दूसरा अकीदा मसीह यीशु का जी उठना और फिर उसकी क्या। Think about the two beliefs in God. आइए ये जो खुदा में दो अकायद हैं इनके बारे में देखते हैं। The first one is God who created the earth. और पहला यह है कि खुदा जिसने जमीन बनाई। Isaiah chapter 40:26.
और ये साया 40 और उसकी 26 आयत में लिखा है, Lift up your eyes on high and see who has created these stars. अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है। God has created everything in the earth. और खुदावंद ने इस दुनिया में सब कुछ तख्लीक किया। The Sabbath is the memorial day of the creation. और जो सबत है खुदावंद की तख्लीक का एक यादगारी दिन है। Because of that, creation and the Sabbath is a very important doctrine in the Bible. और सबत की तख्लीक की वजह से सबत का जो अकीदा है कलाम में बहुत अहमियत का हामिल। The second belief is this: दूसरा अकीदा कुछ यूं है, the God who raised the dead into life. खुदा जिसने मौत को जिंदगी में बदला, That is resurrection. और वो है क़यामत। John chapter 6:40. यूहन्ना उसका, For this is the will of my Father, और ये मेरे बाप की मर्जी है, that everyone who beholds the Son and believes in him will have eternal life. बेटे जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, And myself will raise him up on the last day. और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। The last day is the time of the Jesus advent. और जो आखिर जमाना है उसमें मसीह यीशु की आमद होगी। Because of that, resurrection and Jesus' second coming is a very, very important doctrine in the Bible. और मसीह यीशु की आमद और मुर्दों का जी उठना, इसकी वजह से ये जो अकीदा है कलाम में बहुत खास अहमियत का हामिल। Jesus was also thinking the importance of the two belief. और मसीह यीशु भी ये जो दो अकायद हैं इनके बारे में सोचता था। So while Jesus was working on this earth, he kept the seventh day Sabbath as was his custom. इसलिए जब वो इस रोए जमीन पर जिंदगी बसर कर रहा था तो उसने एक रस्म के तौर पर, रिवाज के तौर पर सबत को 7वें दिन पाक माना। And he also revived the life of the dead several times. और कई बार उसने मुर्दों को जिंदा किया, जिंदगी बख्शी। Let's see the events of the resurrections in the आइए Bible. कलाम में देखते हैं कि मसीह यीशु ने कितने लोगों को जिंदा किया। A girl who was the daughter of Jairus, the synagogue ruler, is dead. और यायर की बेटी जो कि मर चुकी थी, Someone came to Jesus and asked him to revive the girl. और कोई यीशु मसीह के पास है और उसने यीशु से फरियाद की कि उस लड़की को जिंदा करो। The first event was resurrection of a girl. और पहली जो हम जी उठने का वाकया देखते हैं वो एक लड़की जिंदा की जाती है। Luke chapter 8, 52 to 56. लूका 8 बाब उसकी 52 से 56 आयत। Jesus went her house. और मसीह यीशु उस लड़की के घर गया। Now they were all weeping and lamenting for her. और वो तो उस लड़की के लिए रो पीट रहे थे। But Jesus said, यीशु ने कहा, Stop weeping, और रोना और मातम करना बंद करो, for she has not died, but is asleep. वो मरी नहीं बल्कि सोती है। And they began laughing at him. और वो तो मसीह यीशु का मजाक उड़ाने लगे। He, however, took her by the hand and called, saying, मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, Child, arise. ए लड़की उठ। And her spirit returned. और उसकी रूह फिर उसमें वापस आई। And she got up immediately. Her parents were amazed. और वो उसी दम उठी और उसके जो वालिदैन हैं वो हैरान हो गए। This is some abstract story, but this is a real story. और कई शायद इसको कहानी समझे, लेकिन ये हकीकी वाकया है। Look at this picture. अब इस तस्वीर को देखिए। Child, arise. और मसीह यीशु कहता है, ए बेटी उठ। The dead girl was raised. और वो लड़की जिंदा हो जाती है। For humans, common sense, it was miracle. इंसानी सोच के मुताबिक ये एक मौजज़ा था। But in God's side, it's very natural and very, very easy things. और लेकिन खुदा के लिए, खुदा की नजर में ये बहुत आसान काम और एक फितरती काम था। And one time Jesus was going to a town of called Nain. और एक दिन मसीह यीशु नाइन के शहर से गुजर रहा था। And his disciples and a large crowd went along with him. और मसीह यीशु के शागिर्द और बहुत बड़ी भीड़ यीशु के साथ चल रही थी। As he approached the town gate, जैसे ही वो उस शहर के दरवाजे तक पहुंचा, a dead person was being carried out. और देखा कि एक जनाजे को लोग लेकर जा रहे थे।
that that person was the only son of his mother. और वो जो जनाजा था वो एक ऐसे नौजवान का था जो कि अपनी वालिदा का इकलौता बेटा, And she was a widow. और वो तो एक बेवा औरत थी, And a large crowd from the town was with her. और एक बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा जनाजा उस औरत के साथ जा रहा था। When the Lord saw her, जब खुदा मसीह यीशु ने उसको देखा, his heart went out to her and he said, और मसीह यीशु को उस पे तरस आया और उसने कहा, Don't cry. और उस औरत से कहा कि मत रो, Please don't cry. मेहरबानी से रोना बंद करो। We can see this story, resurrection of young man, Luke chapter 7, 14, 15. और इस नौजवान का जिंदा किया जाना, इस कहानी को हम लूका 7 बाब उसकी 14 से 15 आयत में देख सकते हैं। And he came up and touched the coffin. और मसीह यीशु आगे बढ़ा और उसने उसे छुआ, And the bearers came to a halt. और उठाने वाले खड़े हो गए। And Jesus said, और यीशु ने कहा, Young man, I say to you, arise. ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। That man sat up and began to speak. और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। And Jesus gave him back to his mother. और यीशु ने उसकी माँ को उसे सौंप दिया। His mother was very, very pleased and happy with that. और जब उसकी वालिदा ने ये देखा तो वो बहुत खुशी, बड़ी शादमान हुई। The dead young man was raised. वो नौजवान जो कि मर चुका था, यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। Miracle. मौजज़ा। I think that all of you, the name of Lazarus. और यकीनन लाजर नाम से आप वाकिफ हैं। He was Jesus' close friend. और वो मसीह यीशु का बहुत करीबी दोस्त था। But he died while Jesus was far away from Lazarus' village. और जब मसीह यीशु लाजर के गांव से कहीं दूर था तो लाजर की वफात हो गई। Jesus went there where Lazarus was buried. और मसीह यीशु जहां पर लाजर को दफनाया गया था वहां पर गया। The third story of the resurrection is the resurrection of man, mature man. और तीसरी कहानी जो कि जिंदा किए जाने के बारे में है, वो एक ऐसे शख्स की जो कि जिंदा किया गया। We can see this whole story in John chapter 11. और ये पूरी कहानी यूहन्ना 11 बाब में पाई जाती है। Jesus approached the tomb. और मसीह यीशु उस कब्र तक पहुंचा And Jesus said, और कहा, remove the stone. और उसने कहा कि इस पत्थर को हटा दो। He cried out with a loud voice, और बुलंद आवाज से मसीह यीशु ने पुकारा, Lazarus, come forth. ए लाजर निकला। The man who had died came forth, वो जो मर गया था वो बाहर निकल आया, bound hand and foot with the wrappings. कफन समेत उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो बाहर निकल आया। And his face was wrapped around with the clothes. और उसका चेहरा रुमाल के साथ लिपटा हुआ था। Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, unbind him and let him go. इसको खोल दो और इसको जाने दो। The dead Lazarus was raised मुर्दा जो लाजर है उसको जिंदा किया गया by the voice of Jesus. मसीह यीशु की आवाज की कुदरत से। Look at this picture. इस तस्वीर को देखिए। Lazarus, come forth. और मसीह यीशु कहता है, ए लाजर निकला। The dead Lazarus coming out from the tomb. और फिर जो लाजर है वो अपनी कब्र से कफन समेत बाहर निकल आता है, Amazing. जिंदा हो जाता है। And when Jesus was dying on the cross, जब मसीह यीशु सलीब पर अपनी जान दे रहा था, many of the dead were alive. और कई जो मुर्दे थे वो जिंदा हो गए। But many of the Christians don't know this fact. लेकिन कई जो मसीही हैं इस हकीकत से वाकिफ नहीं। But the Bible recorded it. लेकिन कलाम में लिखा है, Matthew chapter 27, मत्ती उसका 27 बाब verse 51 to 53. और उसकी 51 से 53 आयत। And behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. और देखो मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। At that moment, उस वक्त the earth shook and the rocks was split. और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं। The tombs were opened, कब्रें खुल गईं and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. और बहुत से जिस्म
उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। And coming out of the tomb after his resurrection, they entered the holy city, that is Jerusalem, और and उसके- appeared to many. और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहरों में गए और बहुतों को दिखाई दिए। Many bodies of the saints were raised. और कई मुकद्दसों की जो जिस्म है वो जिंदा हो गए। And then resurrection of Jesus himself. और फिर मसीह यस्सु का जी उठना। Jesus was died on the cross, मसीह यस्सु ने सलीब पर जान दी and he was buried in the tomb, और stone उसको tomb. कब्र में दफनाया गया। But 3 days after, लेकिन 3 रोज बाद he was resurrected. वो जिंदा हो गया। The angel said to the woman, फरिश्ते ने औरतों से कहा, "Do not be afraid, तुम ना डरो, for I know that you are looking for Jesus who has been crucified. क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। He is not here in tomb, वो यहाँ नहीं है, for he has risen, क्योंकि वो जी उठा है, just as he said. अपने कहने के मुताबिक। Come, see the place where he was lying." देखो उस जगह को जहां पर खुदावंद पड़ा था The tomb was vacant. और वो कब्र खाली हो चुकी थी Jesus came out of the tomb. और उस कब्र से मसीह यीशु बाहर निकल आया He has risen. और वो जी उठा। The resurrection of the girl, the young man, and the Lazarus was temporary. और उस बच्ची की, उस लड़की की उसका जिंदा किया जाना, उस नौजवान बेवा का जो बेटा नौजवान था उसका जिंदा किया जाना और फिर लाजर का जिंदा किया जाना, ये आर्जी था। The 3 of them died again sometime after. और उसके बाद वो कुछ देर जिंदा रहे और फिर उसके बाद वो मर गए। But the resurrection of Jesus was eternal. लेकिन मसीह यीशु का जिंदा होना अबदी था। Jesus' disciples were totally changed by Jesus' resurrection. और मसीह यीशु के जी उठने की वजह से मसीह यीशु के शागिर्द मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए। Before Jesus' crucifixion and resurrection, the disciples were very cold and very weak. और मसीह यीशु के मसलूब होने के बाद और जिंदा किए जाने तक जो शागिर्द थे उससे पहले वो तो बड़े कमजोर थे, नातवा थे, उनकी मोहब्बत ठंडी थी। Look at that picture. लेकिन जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। Do you imagine what picture is that? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीर कौन सी है, कौन सा नजारा है? There is a cock and Peter there. और वहां पर एक मुर्गा है और वहां पर पतरस है। Before Jesus was judged by the Pharisees, और इससे पहले कि यीशु मसीह फरीसियों के जरिए से उसका इंसाफ किया जाता जो उस पर अदालत की जाती। Peter went there in the Jesus was being judged. और जहां पर मसीह यीशु पर अदालत की जा रही थी पतरस भी उस जगह पर गया। But he was very reluctant to confess he is this Jesus' disciple. लेकिन वो तो इस बात का एतराफ करने में हिचकिचा रहा था कि वो भी यीशु मसीह का शागिर्द है। Mark chapter 14:71. मरकज 14 बाब उसकी 71 आयत। Peter began to curse Jesus and swear, और पतरस यीशु मसीह पर लानतान करने लगा और उसने कसम खाई, "I do not know this man, the Jesus पतरस you ने are कहा- talking about." पतरस ने कहा कि मैं इस आदमी यीशु को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। In this place, Peter denied Jesus Christ. और यहाँ पर पतरस मसीह यीशु का इनकार करता है I don't know him. और कहता है कि मैं इससे नहीं वाकिफ। And he cursed Jesus और Christ. उसने तो मसीह पर लानत भी की। This was Peter. और ये था पतरस। But sometime after, लेकिन उसके बाद Acts chapter 2:14, अमाल 2 बाब उसकी 14 आयत। Peter raised his voice and declared to them, और पतरस बुलंद आवाज से लोगों के साथ मुखातिब होकर उसने कहा, "Men of Judea and all you, let this be known to you and give heed to my word." और उसने कहा, ए यरूशलेम के सब रहने वालों, यहूदिया और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो। In this picture, Jesus preached the gospel very strongly. Peter.
Peter. और इस तस्वीर में पतरस बहुत ही दिलेरी के साथ खुदा का कलाम पेश कर रहा है। What made Peter like that? और इस तरह की बहादुरी और दिलेरी इसमें कैसे आई? Because what Peter changed और पतरस तब्दील हो चुका था। between the two pictures. और ये जो दो तस्वीरें हैं, Peter experienced पतरस का तजुर्बा, Jesus' resurrection. यीशु मसीह का जी उठना, He is not here, और वो यहाँ पर नहीं है, or he has risen. वो तो जी उठा है। Just as he said, जैसे उसने कहा था, Jesus was resurrected. मसीह यीशु जी उठा। Because of this accident, this event, और इस मौजज़े की वजह से Peter was totally changed. पतरस मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। He was man of power. वो तो एक बाकुवत शख्स था, He preached the gospel for the Jewish people. और उसने तो यहूदियों में एक कलाम की मुनादी की। He was one of the most powerful and successful disciple in the New Testament age. और नए अहदनामा में जब हम देखते हैं, नए अहदनामा के दौर में वो सबसे ज्यादा कामरान और कामयाब शागिर्द ठहरा। Jesus' resurrection changed Peter's. मसीह यीशु के जी उठने की वजह से पतरस तब्दील हो गया, Jesus' death and resurrection. और मसीह यीशु जी उठा। And the last day of Jesus' coming, the righteous will be resurrected. और मसीह यीशु के आने से, जब मसीह यीशु आएगा तो जो रास्तबाज है वो जिंदा किए जाएंगे। Maybe at the time of Jesus' second coming, और मसीह यीशु जब दूसरी बार आएगा तो शायद, if I died before Jesus' coming, I will rise. और मसीह यीशु के आने से पहले, उसकी दूसरी आमद से पहले अगर मैं भी मर जाता हूं, जब यीशु आएगा तो मैं जिंदा हूंगा। If you died before Jesus' coming, and if you are believe in Jesus Christ as your Savior, you will be raised. अगर आप मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, और मसीह यीशु के आने से पहले मर जाते हैं, जब यीशु आएगा तो आप जिंदा होंगे। But I am hoping that this elementary school student will meet Jesus without death. और मेरी ख्वाहिश है कि ये मसीह यीशु को, ये जो छोटे बच्चे हैं, एलिमेंट्री के बच्चे, मसीह यीशु जब ये जिंदा ही हो तो मसीह यीशु आ जाए और उसको देखें। Let's see the Bible verses relating to the resurrection of the saints. आइए मसीह यीशु की क़यामत के बारे में और रास्तबाजों के जी उठने के बारे में कलाम का हवाला देखते हैं। 1 Thessalonians chapter 4:16. और पहला तस्सलीकी उसका 4 बाब उसकी 16 आयत। For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। When Jesus is coming जब यीशु मसीह आएगा in the last days, आखिरी अयाम में, the dead in Christ will rise first. वो जो मसीह में मरते हैं वो पहले जिंदा किए जाएंगे, And after then, उसके बाद ascension of the righteous. जो रास्तबाज हैं वो आसमान पर उठाए जाएंगे। Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। When Jesus is coming from the heaven, जब मसीह यीशु आसमान पर आएगा, he will stay in space, वो हवा में ही रहेगा, and the dead will rise. और जो मुर्दा हैं, रास्तबाज मुर्दा, वो जिंदा किए जाएंगे। And we who are alive, हम जो जिंदा बाकी होंगे, and with them the people who arise and the people who are alive, वो जो मुर्दा रास्तबाज जिंदा किए जाएंगे और वो जो जिंदा लोग वहां पर मौजूद होंगे, all together वो सब मिलकर going to the space, Jesus staying there. वो हवा में उड़कर जहां पर मसीह यीशु होगा उसका इस्तकबाल करेंगे। After then we are going to the heaven, God, where God is. और फिर उसके बाद हम आसमान में जाएंगे जहां पर खुदा है। That is an amazing fact. और ये तो एक हैरान कुन हकीकत है। If you believe in Jesus Christ, अगर हम मसीह में ईमान रखते हैं, if you have faith for Jesus Christ, और अगर हम मसीह यीशु
को तकते हैं। Someday when Jesus is coming again, we will go to the heaven. God is there. और जब मसीह यीशु आएगा हम आसमान पर जाएंगे जहां पर हमारा खुदा है। The Seventh-day Adventist church members convince Jesus' second coming and the resurrection very strongly than any other Christians. और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के जो अरकान हैं वो किसी भी दूसरा जो फिरका है उससे ज्यादा मसीह यीशु के जी उठने और उसकी दूसरी आमद पर ईमान रखते हैं। They are very special people in this world. और ये जो फिरका है सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, ये बहुत खास फिरका है इस दुनिया में। And let me tell you this one. और मैं आपको बताए देता हूं, They, the Seventh-day Adventists, are also living for a long time than others. और एक और हकीकत वो ये है कि जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग हैं वो दूसरे लोगों से ज्यादा सेहतमंद और अच्छी जिंदगी, लंबी जिंदगी बसर करते हैं। Their life expectancy is much longer than others. और उनकी जिंदगी की मियाद दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा है। In case of men, और मर्दों की निस्बत the average life expectancy is 75. और जो मर्द हैं उनका जो जिंदगी की मियाद 75 बरस है। But there is some difference by country. लेकिन हर मुल्क के लिहाज से ये फर्क है। But average life expectancy is 75. But Adventist life expectancy is 85. और अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो अमूमन जो मर्द हैं वो 75 बरस तक जिंदा रहते हैं, लेकिन जो एडवेंटिस्ट मर्द हजरात हैं वो 85 बरस तक जिंदा रहते हैं। Normally Adventist church members are very healthy. और जो एडवेंटिस्ट लोग हैं वो अमूमन बहुत सेहतमंद होते हैं। Do you guess my age? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साहिब कलाम की उम्र क्या है? How old are you? एक ने कहा 95, एक ने 75। Okay. I will tell you. चलें, ओके, अब खामोश होके सुनेंगे। My age is 68. और साहिब कलाम की उम्र 68 बरस है। 68। Why? क्यों? Adventist church members चलें जी, खामोश हो जाएंगे। are living according to God's word and God's commandment. और ये इसलिए है कि जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट अरकान हैं, ये फिरका है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक और उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। Let's see this US newspaper. और अमरीकी अखबार, ये जो अमरीकी अखबार है जरा इसको देखते हैं। Please done. ओके, अब सब खामोश हो जाएंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी। डीन्स, This newspaper is 29 February 20. और ये जो अखबार है ये फरवरी 20, 2009 का है। In this newspaper, this article was written. और इस अखबार में ये खबर छपी, 10 habits that will help you live to 100. 10 सेहत की ऐसी आदत जो कि आपको 100 साल तक जिंदा रहने में मददगार साबित होती हैं। If you want to live longer, please accept this. और अगर instruction. आप लंबी जिंदगी बसर करना चाहते हैं There तो are ये जो 10. आदत हैं इनको अपनाएं। The habits of those who live to 10 और 100. और वो लोग जो कि 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं उनकी आदत कैसी होनी चाहिए? I don't like the read all these things. ये सारी आदत आपके सामने ये सारे जुमले नहीं पढ़ेंगे। I like to introduce the ninth. और जो नवा यहाँ पर जुमला लिखा है, नवी बात या आदत है, वो आपके सामने पढ़ेंगे। Live like a Seventh-day Adventist. सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों की तरह जिंदगी बसर करें। Live like a Seventh-day Adventist. सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों की मानिद उनकी तरह जिंदगी बसर करना This शुरू is करें। Newsweek magazine. और ये न्यूज वीक मैगजीन की खबर थी। 2011 में How to live forever. हमेशा तक कैसे जिंदा रहा जाए। That means how to live longer. और इसका मतलब ये है कि किस तरह से लंबी जिंदगी बसर की जाए। I like to introduce the first four elements. और पहले जो 4 यहाँ पर अवामल हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। The first one is if you are female, you can live longer. और
पहली बात वो ये है कि अगर आप एक खातून हैं तो आप ज्यादा लंबी जिंदगी बसर कर सकती हैं। Generally, women is living longer than men. अमूमन जो औरतें होती हैं, खवातीन हैं, वो मर्दों से ज्यादा लंबी जिंदगी जीती हैं। This line will be live longer than this line. और ये जो डेड लाइन है ये शायद ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदगी बसर करेंगी। फिर ये जो अढ़ाई लाइनें हैं। And the second one is this. और दूसरी बात, If you are a Seventh-day Adventist, you can live longer than others. अगर आप सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के रुकन हैं तो फिर भी आप लंबी जिंदगी बसर कर सकते This हैं। is article from Newsweek, the most famous news magazine. और एक बहुत ही मशहूर अखबार में से न्यूज़ वीक जिसका नाम है, उसने ये खबर छापी। And the third one, तीसरी बात, your mother was younger than 25 when you were born. जब आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा की उम्र अगर 25 साल से कम थी तो आप लंबी जिंदगी बसर कर सकते हैं। If your mother अगर आपकी वालिदा get born, her age under 25, you are very healthy. अगर आपकी वालिदा की उम्र 25 साल से कम थी तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा लंबी जिंदगी बसर कर And the सकते हैं। fourth one is you live in an area with little pollution. और फिर चौथी बात, आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हों जहां पर जो आलूदगी है वो कम हो। So why the Seventh-day Adventists live longer than others? तो फिर ये जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग हैं ये दूसरों से ज्यादा लंबी उम्र कैसे गुजारते हैं? I like to introduce the three causes of longevity of the Adventists. और एडवेंटिस्ट लोगों की लंबी उम्र की 3 वजूहात आपके सामने पेश की जाएंगी। Please listen this very carefully. और एलिमेंट्री के बच्चे खास तौर पर अभी भी शोर कर रहे हैं, गौर से सुनेंगे। They are eating healthy food. पहली बात, वो सेहतमंद गजा खाते हैं। Second, दूसरी बात, they are rest on Sabbath. सब्बत के दिन आराम करते हैं। And they worship God and spiritual fellowship on Sabbath. और सब्बत के रोज वो खुदा की इबादत और एक दूसरे के साथ रूहानी रफाकत रखते हैं। They don't work वो on the Sabbath. सब्बत के दिन वो कामकाज, दुनियावी कामकाज नहीं करते। They have rest and they have fellowship with the church members. सब्बत के रोज आराम करते हैं और दूसरे साथी कारगुजारों के साथ, अरकान के साथ वो रफाकत रखते हैं। It makes them very healthy. और इससे उनकी सेहत बहुत अच्छी The हो third जाती one है। is hope of the second coming and resurrection. तीसरी वजह, दूसरी आमद और क़यामत की उम्मीद। Hope is very important. उम्मीद बहुत खास अंसर है। Especially the hope of the second coming and resurrection is very, very important for man's spiritual and physical health. और इंसान की रूहानी और जिस्मानी सेहत के लिए मसीह यीशु की दूसरी आमद और क़यामत पर यकीन दहानी बहुत खास है। Let me introduce one story. एक कहानी आपके सामने बयान करेंगे। An NGO group brought a gift to Africa. एक एनजीओ के अरकान अफ्रीका में कुछ तहाइफ लेकर गए The gift was seed. और वो तोहफा बीज का तोहफा था। One of the best gift for African is seed. एक बेशकीमत तहाइफ में से जो बीज है वो अफ्रीकी लोगों के लिए बहुत खास तोहफा है। Because they eat all seed before coming the next year spring. क्योंकि वो आने वाले मौसम से पहले ही जितना अनाज उनके पास होता है, बीज होता है, वो उसको खत्म कर लेते हैं। They are खा very लेते हैं। hungry. वो बहुत भूखे होते हैं So they eat the seed और उन्होंने सारा बीज खत्म कर लिया। before coming spring. आने वाले मौसम से पहले उन्होंने सारा जो बीज है उसको अनाज खत्म कर लिया। The NGO distributed the seed village by village. और जो वो एनजीओ थी उन्होंने क्या किया, वो जो अनाज या जो बीज था वो उन्होंने गांव बा गांव जाकर तकसीम किया। At last there was no more seed to distribute. और हत्ता कि उनके पास कोई भी अनाज ना बचा के वो लोगों में तकसीम करते। A village received the seed और
एक जो गांव था उसने अनाज हासिल किया, but B village could not receive the seed because of the lack of the seed. और जो दूसरा एक गांव था जिसको हम बी गांव कह सकते हैं, उसको अनाज ना मिला क्योंकि अनाज खत्म हो चुका था। The people of A village could sow the seed. और जो ए विलेज के एक गांव के लोग थे वो तो उस अनाज को देख सकते थे, हासिल कर सकते थे, But the people of B village could not sow the seed because they don't have seed. लेकिन जो दूसरे गांव के लोग थे उन्होंने बीज को, चूंकि उन्हें नहीं बीज मिला और उन्होंने उस बीज को नहीं देखा था, But the drought was too severe. लेकिन जो कहत था या खुश्क साली थी वो बहुत भयानक थी। As the result, और इसके नतीजे में all of them, A and B village, could harvest nothing. और वो जो दोनों गांव थे वो फसल के तौर पर कुछ भी काश्त ना कर पाए खुश्क साली की वजह से। Even though A village people sowed the seed, but they got nothing. और वो जो ए विलेज के लोग थे, ए गांव के लोग, उनके पास बेशक बीज था लेकिन वो कुछ भी बो ना सके। Many people of B village died by starvation. और भूख की वजह से दूसरे गांव के लोग मर गए, But people of A village almost was alive. लेकिन ए विलेज के लोग जो थे ए गांव के वो जिंदा रहे। Do you know the reason why? आपको पता है कि वजह क्या थी? That is the hope. और वो वजह थी उम्मीद। A village people had hope because they did so. और ए गांव के जो लोग थे, चूंकि उनके पास वो बीज था और वो बीज को देखते रहे और उनके अंदर उम्मीद जिंदा रही। It is very important for human being to have the hope. बनी नौ इंसान के लिए उम्मीद रखना बहुत ही खास और जरूरी है। My beloved student here, मेरे अजीज तालिब इल्मों, please keep hope. मेहरबानी से उम्मीद बांधे रखें। Don't disappoint in any circumstance. किसी भी हालत में मायूस ना हो, Have hope. उम्मीद रखें। Jesus' second coming and resurrection are the greatest hope for mankind. मसीह यीशु का जी उठना और फिर क़यामत इंसान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। Why don't you keep this great hope of the advent of Jesus and resurrection? और क्यों ना हम भी मसीह यीशु की दूसरी आमद और क़यामत की उम्मीद ना रखें। Dear my friend in this Seventh-day Adventist school, इस सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में मेरे अजीज दोस्तों, often when our lives are hard, जब अक्सर हमारी जिंदगी बहुत दुश्वार हो जाती है, painful and weary, बहुत तकलीफ दे और थक जाती है, please don't forget our Lord with मेहरबानी us. से हमारे खुदा उनको मत भूले, वो हमारे साथ है। Unless we let go of the Lord's hands, जब तक कि हम उसका हाथ नहीं छोड़ देते, He is always by our side, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, watching over us and helping us. हमेशा हमारी फिक्र करता है और हमारी मदद करता है। Don't want everything to be my way at my own time. और हर चीज हमेशा मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। Pray for the Lord's will to be at His appointed time. और हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि ऐ खुदा तेरी मर्जी तेरे वक्त के मुताबिक पूरी हो। Don't even try to control your life on your own. और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक काबू करने की कोशिश ना करें। Leave it to the will of the Lord, अपनी जिंदगी को खुदावंद की मर्जी पर छोड़ and दें, He will guide you. वो आपकी मदद करेगा। The Lord does not lead us to a comfortable path, और खुदा हमें किसी राहत बख्श राह की तरफ नहीं लेकर जाता, but to the safest path, even if it is rough. बल्कि वो तो हमें महफूज तरीन रास्ते की तरफ लेकर जाता है, चाहे वो दुश्वार ही क्यों ना हो। If we are to death, we don't have to be afraid. अगर हम मौत के मुंह में भी क्यों ना हो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। He will call us out of the grave on the day that He comes to live with you forever और in a वो place of without pain, sorrow and death. वो जब आएगा तो हमें कब्र से पुकारेगा, जब वो हमारे साथ दर्द गम और मौत के बगैर हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए आएगा। The Lord said and promised, और खुदावंद ने कहा और ये उसका वादा है, I am the resurrection and the life. क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, He who believes in me will alive even if he dies. जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा।
Those who transcend death have nothing to fear in the world. मौत से मावरा होने वालों को दुनिया में खौफ ज़दा करने की कोई जरूरत नहीं। Lest I will read this verse again. आइए एक बार फिर से ये हवाला पढ़ते हैं। John chapter 11 verse 25. यूहन्ना 11 बाब उसकी 25 आयत। I am the resurrection and the life. क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। He who believes in me will live even if he dies. जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। And everyone who lives and believes in me will never die. और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। I will ask this question. मैं आपसे ये सवाल करूंगा, Do you believe this? क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? Do you believe this? क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? Again, do you believe this? एक बार फिर से, क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? You will be raised when Jesus is coming. जब यीशु मसीह आएगा हम जिंदा किए जाएंगे। आमीन। May God bless you. खुदावंद आपको बरकत बख्शे। You pray. हम दुआ मांगेंगे। खुदा अजीम बहरबर के खालिक, तेरा शुक्र, तेरी सताइश, तू लश्करों का रब है। खुदावंद आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सुबह सवेरे तेरा कलाम सुना, जिंदा उम्मीद है खुदावंद जब तू आए तो है खुदावंद हम तेरा इस्तकबाल करें। अगर हम खुदावंद तेरे आने से पहले मर जाते हैं, हमारे अंदर उम्मीद क्या है खुदावंद तुझ में सोएंगे और जब तू आएगा तो हम जिंदा किए जाएंगे, तेरा इस्तकबाल करेंगे। उस वक्त तक अगर हम जिंदा रहे तो भी है खुदावंद हम तेरा इस्तकबाल करें। इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी बसर करें, तेरे नाम को जलाल दें। आज के कलाम के वसीला से हम 100 गुना फल लाएं। हम में से जितने भी आज इस हॉल में मौजूद हैं, एक एक को नाम बनाम बरकत दे खुदावंद। तू है खुदावंद मुर्दों को ज़िंदा करने वाला खुदा। हम तेरे पास आते अपनी मिन्नतें, फरियादें, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां पेश करते। तू है खुदावंद हमें उनसे रहाई देने वाला कादर खुदा है। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, तू ही इसके लायक। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में